Hi everyone and welcome back to my channel Dark PZ again. So today I brought for you a very short and crisp summary of the chapter discovering the third chapter from your book Hornbill. So the chapter is written by A.R. Williams, as you can see here, and in this chapter the author introduces us, to the dynasty, the Pharaoh dynasty, and especially the author has talked about King Tut or Tutankhamun, right, who earned the throne in his teenage days. His name was, cut short to Tut because it was a very long name, and he was considered the last teenage ruler. Here in this chapter, the author has discussed how Tut's mummy and the tomb were discovered after an extended period and observations of the research conducted by Howard Carter and later on by the Egyptian Ministry of Antiquities. So in this chapter, the Discovering Tut, the saga continues from your, class 11. This fellow, King Tut, he later changed his name to Tutankhamun, right? Earlier his name was Tutankhaten, and he was the last heir to the powerful Pharaoh dynasty, which ruled Egypt for, a lot of years, like almost, 100 years. Before moving any further, let us, discuss the important key points from this chapter. Now, the first one, as you can see here, King Tut was also called Tutankhamun and Tutankhaten. तो उसने अपना नाम बाद में चेंज कर लिया था. पहले तुतैनखातेन था, उसने बाद में तुतैनखामुन कर लिया. He was born in 1341 BC before Christ and died in 1321 BC at a very early stage. तो BC का जो ऑर्डर है वो उल्टा चलता है. पहले 21 आता है, उसके बाद 20 आता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ. He became king at the age of 11 years. 11 साल की उम्र में वो राजा बन गया और 7-8 साल जिया. उसके बाद उसकी अनटाइमली मौत हो गई. He died. It was an untimely demise. The Amun and Eten are the words attached to the name of King Tut, that is Tutankhamun and Tutankhaten. Here Amun is referred to as the Egyptian god of sun and air. Okay, Eten is the disk of the sun. These words were attached to the King Tut's name because he used to worship these gods. Okay, he was from the powerful Pharaoh dynasty and it ruled for centuries. 100 साल इन्होंने राज किया. Generally, Pharaoh is the Egyptian term for a king. तो किंग टट की मौत बहुत ही यंग एज में हो गई थी, 18-19 साल की में, राइट. यहाँ कहीं कुछ लोग 17 कहते हैं, कुछ 18 बताते हैं. इट इज नॉट, फिक्स एग्जैक्टली नहीं पता है किसी को. हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री एंड टिल डेट इट इज अनसॉल्व्ड. सम स्पेकुलेट दैट इट वाज मर्डर. तो कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद मर्डर किया था. एंड अदर्स, देयर आर अदर पीपल हु थिंक, दे गिव अदर प्रोबेबिलिटीज कि शायद कुछ और एक्सीडेंट हुआ था. But Tutankhamun was buried and forgotten with the passage of time until in 1922 his tomb was dug up by Howard Carter. 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने जब दोबारा इसका टूम खोदा, इसके कब्र में से वो सब निकाला, सारी इसकी डेड बॉडी, इसकी मम्मी, तब जाके दोबारा से इट बिकेम अ सेंसेशन. 80 years after Howard Carter's discovery of the tomb in January 2005 at 6 p.m. the mummy of Tutankhamun was taken for a CT scan. तो हॉवर्ड कार्टर के डिस्कवर करने के बाद जो भी उसने डिसेक्रेशन किया मम्मी का, उसके बाद दोबारा कब निकाला गया? 80 साल बाद, दैट इज इन 2005, राइट. इट वाज टेकन आउट फॉर सीटी स्कैन. इट वाज केप्ट अंडर ज़ही हवास. ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. एंटीक्विटीज जो होती हैं वो पुरानी जितनी भी चीजें होती हैं, वो मॉन्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, वो सब एंटिक्विटीज में आते हैं. पुरानी चीजें, विच डेट बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उस वक्त की जो चीजें हैं. So, when it reached there, right, Zahi Hawass, it was done under the supervision of Zahi Hawass. According to him, the condition of King Tut's mummy was worse because of Howard Carter, क्योंकि Howard Carter ने उसके साथ तोड़फोड़ कर दी थी. Who was Howard Carter? Howard Carter एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले इसकी मम्मी को ढूंढा था 1922 में. Now this CT or computer tomography, आपने सब जानते होंगे, CT scan, it was done to reconstruct his death mystery. तो उसकी डेथ की जो मिस्ट्री है सराउंडिंग उसकी डेथ की, वो सब जानने के लिए किया गया था, राइट, थ्रू फोरेंसिक एंड मेडिकल प्रोसीजर्स. इट वाज फाउंड दैट ही हैड डाइड मोर देन 3300 years ago and was buried in a royal grave in the Valley of the Kings. तो आप जैसे देख सकते हैं ये पिक्चर, ये वैली ऑफ द किंग्स है, यहाँ पे उसे दफन किया गया था 3300 साल पहले. मतलब कितने हजारों साल बीत गए, उसके बाद इसकी मम्मी मिली. In the experiment conducted by Howard Carter, he observed several things buried with King Tut inside the grave. तो ग्रेव के साथ और भी कॉफिन मिले थे जिसमें और सारी जरूरत की चीजें मिली थी. Carter found that the tomb was in the wealthiest royal collection ever seen, right? तो अब तक का जितने भी कलेक्शन मिले थे इजिप्शियन ममीज के, उसमें सबसे वेल्दीएस्ट जो कलेक्शन था वो किसका था? किंग टट का. इट हैड ब्यूटीफुल गोल्डन आर्टिफैक्ट्स, बोर्ड गेम्स, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं उस टाइप का कोई गेम था, ब्रोंज रेजर्स फॉर शेविंग, राइट, एंड केसेस फॉर फूड एंड वाइन, लिनन अंडरगारमेंट्स, जो फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन होती है उसके अंडरगारमेंट्स से. In its possession, Egyptians believed in life after death, and thus when they used to bury any powerful king, they filled their grave with lots of riches like precious stones, jewels, gold, etc. So this actually justifies why he was buried with so many things.
क्योंकि इजिप्शियंस का जीवन के बाद भी मौत दूसरी लाइफ आफ्टर लाइफ में बिलीफ था, इसलिए उन्हें लगता था कि अगर हम सारी चीजें देंगे तो उसकी लाइफ आसानी से कटेगी और रीबर्थ होने में भी उसे मतलब आसानी रहेगी। सो यू नो देयर वाज एवरीथिंग व्हिच द रूलर वुड नीड इन हिज आफ्टर लाइफ, हर चीज रख दी गई थी। मोरओवर दिस प्रोसेस कीप्स आर्टिफैक्ट्स एंड आइटम्स दैट सर्व द आइडिया ऑफ द आफ्टर लाइफ एंड प्रोटेक्ट्स द डेड बॉडी बाय ममीफाइंग देम। तो ममी बनाई जाती थी, उस पे रेजिन्स लगाए जाते थे, मसाले और बहुत सारी चीजें होती थी ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो। देयरफॉर द बॉडी ऑफ किंग टट वाज आल्सो ममीफाइड विद दीज आइटम्स। तो ये सब उनका एक पुराना एक ट्रेडिशन चला आ रहा था जो सारे राजाओं के साथ किया जाता था, तो टट के साथ भी किया गया। दीज वर इज funerary treasures, जो यहाँ funeral treasures कहे गए। Later he began investigating the 3 nested coffins of Tut. Nested मतलब जो दीवार में रख दिए गए हो किसी चीज पे सपोर्ट देके, 3 कॉफिन थे। The first coffin had Tutankhamun's shroud covered with garlands of olive leaves. तो पहला जो कॉफिन था उसके अंदर कफन को कहते हैं श्राउड, वो मिला था एंड इट वाज कवर्ड विद गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स। ऑलिव पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उससे वो कवर्ड था, राइट। एंड देयर वर आल्सो वाइल्ड सीलरी, यानी धनिये की जो यूरोपियन बहन होती है उसे वाइल्ड सीलरी कहते हैं। लोटस पिटिस, लोटस यानी कमल की पत्तियां थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स व्हिच इंडिकेटेड दैट ही वाज बरीड इन मार्च और अप्रैल। तो ये सारे जितने भी ये हर्ब्स बताए गए हैं, लीव्स बताई गई हैं, ये मार्च और अप्रैल के सीजन में ही होती हैं, इसलिए अंदाजा ये लगाया गया कि टट का जो बरियल हुआ था वो मार्च या अप्रैल महीने में हुआ था। नाउ कार्टर बिलीव दैट द यू नो एट द टाइम ऑफ बरिंग किंग टट पीपल मे हैव ऑफर्ड रिचुअल्स। तो कार्टर को लगता था कि लोगों ने रिचुअल्स ऑफर किए होंगे। इन दोज रिचुअल्स दे मस्ट हैव यूज रेजिन्स, जो मम्मी बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। अ ग्लू फाउंड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रीज, जैसे गोंद आपने देखा होगा पहले निकाला जाता था पेड़ों से, वही उसी टाइप की कुछ चीज थी। आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड दोज रेजिन्स हैव टर्न्ड हार्ड एंड गॉट स्टक विद द गोल्ड कॉफिन ऑफ किंग्स ममी। तो मम्मी जो थी टट की, वो नीचे का जो पार्ट था कॉफिन का उससे चिपक गई थी, क्योंकि बहुत साल बीत गए थे, 3300 साल बीत गए थे इस वजह से। कार्टर को बहुत प्रॉब्लम आई उसको, क्योंकि मम्मी चिपक गई थी नीचे, यू नो इट हैड सॉलिडिफाइड, दोज रेजिन्स हैड सॉलिडिफाइड and he had faced a lot of problems with loosening the resin, right, that held the king's shroud, you know, to the bottom of the coffin. It held the body extremely tightly. Obviously आप कोई भी चीज इतने लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे तो वो जमी जाएगी, उसको निकालना मतलब it is next to impossible. Carter tried using the hot sun, तो उसने मम्मी को बाहर धूप में रख दिया, तपती धूप में, और वहां का टेम्परेचर इजिप्ट के रेगिस्तान का, तब भी कुछ नहीं हुआ। The mummy didn't budge, वैसे की वैसी ही रही, but even heating to 149 degrees of Fahrenheit would not help it melt. This made Carter terrified and he started to think of any other way to preserve the mummy so that no one else could harm the mummy of King Tut. तो मतलब पहले तो टट को हॉवर्ड कार्टर को क्रिटिसाइज किया गया था कि उसने मम्मी को तोड़ के निकाल लिया, बट लेटर ऑन आई मीन पीपल केम टू रियलाइज, दे बिगन टू रियलाइज कि अगर हॉवर्ड कार्टर नहीं निकालता तो वहां इतने चोर और ये सब लुटेरे थे, वो उन्होंने प्लंडर कर दिया होता पूरे टूम को और सब कुछ चुरा के ले गए होते, मम्मी भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी होती। बिकॉज दोज प्लंडरर्स, दोज लूटर्स, दे did not, I mean, would not care about the mummy. They will only care about the gold and other, precious items. तो इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने जो किया वो एक तरीके से सही था। So when he was left with no other, alternative, he had no other option. So he cut the mummy from under the limbs and gold trunk. Otherwise, thieves would rob it of its gold by cutting and robbing the body's limbs. तो वही जो मैंने अभी बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज वाई कार्टर चोज द अदर वे टू प्रोटेक्ट द ममी ऑफ किंग टट। अब ज़ही हवास को लगता था कि हॉवर्ड कार्टर ने ममी की कंडीशन खराब करी है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो और लूटर्स आके, प्लंडर्स आके वो भी कर देते, तो मतलब इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आर्कियोलॉजिस्ट स्टेटेड that advanced technology enabled them to examine the mummy more accurately. In 1968, almost 40 years later, a professor of anatomy x-rayed the mummy's body and discovered that the breastbone and front rib of Tutankhamun were missing. तो हॉवर्ड कार्टर ने जब इसे बाहर निकाला था और अब जब ज़ही हवास के सुपरविजन में निकाला गया, उसके बीच में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने और एक बार इसे निकाला था। This mummy was taken out, and that professor of anatomy, he had found using very advanced technology that a front of his few ribs were missing, right, and the breastbone. तो उसकी breastbone और front ribs missing थे, तो इसका मतलब ये शायद उसे मारा गया था, or maybe he had fell down from from some elevated place. One of the reasons that caused this finding could be the incident when Carter was trying to separate the mummy. अब बहुत सारे स्पेकुलेशन ये भी है कि जब कार्टर उसको तोड़ के मम्मी को बाहर निकाल रहा था लिम्स में काट के, तब भी शायद ये हो सकता है डैमेज फ्रॉम इट्स गोल्ड कॉफिन एंड मे हैव डैमेज द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट इज व्हाई दोस पार्ट्स वर मिसिंग, और शायद इसी वजह से वो पार्ट्स आज भी इसमें से मिसिंग है। किंग तुतनखामुन's demise brought an end to his lineage. तो तुतनखामुन अपनी लीनियज का आखिरी, अपने डायनेस्टी का आखिरी राजा था, फेरो डायनेस्टी का, और उसके बाद उसकी पूरी लीनियज इट एक्चुअली केम टू एन एंड। इट वाज ग्रेट इवेंट इन हिस्ट्री। ऑब्वियसली जो डायनेस्टी 100 साल से राज कर रही हो एंड abruptly it suddenly the last ruler dies and it comes to an end, so it was like the death rattle of a dynasty, and it was in fact a very great historical event. The author gives us a brief description of the ancestor of King Tut. So first, Amenhotep
III, right? Tut's father or grandfather, it is not clear. Amenhotep III was most probably his grandfather. He was an extremely powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. So 40 साल जो टट के दादा थे उन्होंने रूल किया. His descendant Amenhotep IV, जो कि टट के फादर हैं, had initiated a strange period in the history of Egypt. तो एक बहुत ही वियर्ड सा पीरियड आया इजिप्ट की हिस्ट्री में जब एमेनहोटेप IV, जो कि टट के फादर थे, वो राज करने आए. He changed his name to Akhenaten, right, or the servant of Aten, the sun god. तो उनका पहले नाम क्या था? अखेनामून, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर लिया अखेनातेन, which means the servant of the god. He also promoted the worship of sun god. So Tut's father Akhenaten, during his rule, he moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten, which was earlier, known as Amarna. He shifted the capital to gain enormous power over the whole area and control it from one place. तो क्योंकि बहुत ही स्ट्रैटेजिक ये डिसीजन था, एक जगह से पूरे सारे एरिया को कंट्रोल करना था, इसलिए यहाँ पे कैपिटल थीब्स से यहाँ शिफ्ट करी गई. He attacked god Amun. तो जो अर्लियर गॉड था अमून, उसकी सारी जितनी मूर्तियां थी वो तोड़वा दी इसने, राइट. He attacked the god and smashed even his temples, right, and idols. It was, a terrible time for the people of the kingdom. तो एक लोगों की आस्था जो सदियों से चली आ रही थी उसको एकदम से ठेस पहुंचाना, उसको नष्ट कर देना, तो उसकी वजह से बहुत अपहीवल हुआ. And it created a very, period of havoc in the history of Egypt. During his later years, he had somewhat lost his sanity. और बाद में वो थोड़ा पागल भी हो गया था, Amenhotep IV. And a mysterious ruler called Ismenkhare ruled for some time. इनकी मौत के बाद थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही जरा से टाइम के लिए, Amenhotep IV की मौत के बाद एक रूलर आया जिसका नाम था Ismenkhare, right? But he came like a flash. वो एक चमक की तरह आया, एक बहुत ही जल्दी, जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से चला गया, right? And after this man came the young ruler Tutankhamun, and he assumed the throne. Now King Tut ruled for almost 9 years, right? 11 साल की उम्र में राजा बन गया था, 9 ईयर तक लगभग, तो 19-20 साल की उम्र में मौत हुई होगी, right? And he made tremendous efforts for the welfare of people and restored the lost glory of his dynasty. तो Amenhotep IV के रूल में जो बहुत अपहीवल हुआ था, हेवोक क्रिएट हुआ था, केओस हुआ था, इसने टट ने उसको रिन्यू करने की, ठीक करने की, रिवाइव करने की बहुत कोशिश करी. ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड दस ही वाज कॉल्ड द लिविंग इमेज ऑफ अमून. तो जो पुराना गॉड था जिसकी इमेजेस एमेनोटेप ने तोड़वा दी थी, वो दोबारा से उसने उसको रीइंस्टेट करवाया, राइट. एंड दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ही वाज आल्सो कॉल्ड द लिविंग इमेज ऑफ अमून. ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली एट अ वेरी यंग एज. नाउ द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये सारी ममीज की इन्वेंटरी हो रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें क्या क्या मिला उसकी लिस्ट बनाई जा रही है, उसके तहत इट हैज लिस्टेड आउट मोर देन 600 ममीज एंड इट स्टिल काउंटिंग. तो अभी तक 600 ममीज, जब ये चैप्टर लिखा गया था 600 ममीज मिल चुकी थी और अभी भी ये काम जारी है. टट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ. तो टट जब जिंदा था तब भी सबसे आगे था. ही वाज द यंगेस्ट टू बिकम किंग, राइट, ऑफ सच अ पावरफुल डायनेस्टी, ऑफ सच अ पावरफुल किंगडम. और मरने के बाद भी वो सबसे आगे रहा क्योंकि पहली ममी थी जिसको सीटी स्कैन में डाल के स्कैन किया गया, राइट. सो while working on the scan of the mummy, the scanner had abruptly stopped working. तो जब वो सीटी स्कैन जो सीमेंस ने गिफ्ट किया था, नेशनल ज्योग्राफिक और सीमेंस ने इनको, इजिप्शियन बोर्ड ऑफ एंटिक्विटीज को, काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज को, उसने एकदम से काम करना बंद कर दिया. क्यों? टेक्नीशियन अज्यूम दैट इट वाज द कर्स ऑफ द डेड. तो वहां जो टेक्नीशियंस थे और लोकल गार्ड्स थे, उन्होंने कहा ये श्राप है. किसका श्राप है? टट का. इट वाज द कर्स ऑफ द डेड. एंड रूमर्स वर क्रिएटेड दैट इफ एनीबॉडी ओपन्स द फेरोज कॉफिन ही विल फेस द कर्स ऑफ किंग टट. और एक र्यूमर ये भी उड़ रही थी, किसी ने किंग टट को उसकी नींद से जगाया, उसका कॉफिन खोला, राइट, तो उसको श्राप मिलेगा और उसकी पूरी फैमिली, सारे लोग जो है वो मर जाएंगे, राइट. बट लेटर दे केम टू नो दैट द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज विद द कूलर्स इनसाइड द स्कैनर. तो प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल थी. जो अंदर कूलिंग फैन लगे थे वो खराब हो गए थे, उसमें डस्ट चली गई थी. द फैंस एक्सीडेंटली malfunctioned and thus the scanner stopped working. So it had nothing to do with the curse. तो ये सिर्फ सुपरस्टिशन था, कर्स का इससे कोई रिलेशन नहीं था. सो सम स्पेयर फैंस, क्योंकि वो जो कूलिंग फैंस थे वो खराब हो गए थे, तो जो और स्पेयर फैंस थे वो यूज करेगा. आफ्टर यूजिंग स्पेयर फैंस फॉर सम टाइम द स्कैन वाज मेड पॉसिबल एंड फाइनली इट वाज डन, राइट. बाय देन एवरी मेंबर प्रेजेंट देयर फ्रॉम द फोरेंसिक टीम वाज ट्राइंग टू फॉर्म द फेरोज फेस. तो जितने भी मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन से अलग अलग एंगल से पिक्चर्स लिए गए थे, उनको कनेक्ट करके एक 3D इमेज बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे. दे वर अज्यूमिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ किंग टट टू रिजेंबल हिज फेस, right? After producing an image of the dead king, he was laid back in his coffin in the Valley of the Kings. तो जब पूरा स्कैन कंप्लीट हो गया, किंग टट को दोबारा उसके रेस्टिंग प्लेस में भेज दिया गया. He was sent back to the tomb, right, along with his coffin. He rested under the Orion constellation. Orion एक constellation है जो आसमान में उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, वो जो अलग अलग तारे शेप्स बना देते हैं, वैसे ये constellation है. इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसका जिक्र है. Which was considered the soul of Osiris or god of the afterlife. तो ओरायन जो कॉन्स्टलेशन है वो जो इजिप्शियन गॉड है ओसाइरिस, उसका सोल माना जाता है उसे, अकॉर्डिंग टू इजिप्शियंस. Here, author A.R. Williams amusingly describes people's views of how
God takes care of Pharaoh's body even after his death. तो यहाँ पे थोड़ा सा इन अ वेरी कॉमिक टोन, हल्का सा मजाक उड़ाते हुए ऑथर ने कहा है कि इजिप्शियंस का मानना ये है कि कैसे जो कॉन्स्टलेशन है, इवन आई मीन जो गॉड्स हैं, इजिप्शियन गॉड्स, वो इस बॉय फेरो की देख रेख कर रहे हैं उसके मरने के बाद भी, इवन व्हेन ही इज डेड, आई मीन दे आर लुकिंग आफ्टर हिम, राइट? So this chapter provides us with a detailed, perception and understanding of the historical Egyptian culture. Especially, I mean, talks about King Tut and how he, I mean, died, at what time he died, when he became king. Moreover, we come to know about the Egyptians' belief in life after death. तो इजिप्शियंस का जो एक मान्यता है कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, उसके बारे में भी काफी इसमें डिस्कशन हुआ है. द गोल्ड इन दिस चैप्टर ऑल्सो रिजेंबल्स द वेल्थ ऑफ द किंग टट्स डायनेस्टी. और कैसे, मतलब एक अगर आप आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो राजाओं के पास सब कुछ होता था, ठीक, उनको गोल्ड, आई मीन दे वर लेडन विद गोल्ड इवन व्हेन दे डाइड, राइट, व्हेन दे वर लेड टू रेस्ट, उनका पूरा कॉफिन जो है वो भरे होते थे सोने से. Burning gold with the body of the king indicates the belief of the people that gold will ensure rebirth. तो गोल्ड इसलिए भी रखा जाता था क्योंकि इजिप्शियंस का मानना था कि गोल्ड रखने से रीबर्थ जो है वो पक्की हो जाएगी, होनी है. आई मीन द फेलो हु इज, आई मीन, being laid to rest with so much gold is going to get a very good rebirth. Okay, so this was sorry, the crisp summary of your chapter. Hope this helped. If you have any other queries, you can always contact me. You can DM me, message me on WhatsApp, on YouTube. Till then, you have a good day. Hasta la vista.